Namaste बच्चों. Today we are here with some more problems on laws of exponents. And your first problem is 8 raised to the power minus 2 by 3 into 2 raised to the power 1 by 2 into 25 raised to the power minus 5 by 4 divided by 32 raised to the power minus 2 by 5 into 125 raised to the power minus 5 by 6 is equal to root 2. We have to prove that the value of this will be equal to root 2. So let us solve it. Your solution will be, it is 8 raised to the power minus 2 by 3 and 8 is the cube of 2. तो 2 का क्यूब लिखेंगे, इसका होल पावर लिखेंगे -2 by 3 and then 2 का पावर 1 by 2 and then 5 का पावर 2. 25 is the square of 5 whole power minus 5 by 4 upon division is there, so it will be upon 2 power 5. 32 is equal to 2 to the power 5 and whole power is minus 2 by 5 and 125 is the cube of 5 and whole raised to the power minus 5 by 6. This is your LHS. Right here LHS. So let us solve it. The 3 will be cancelled with 3 and this 4 will be cancelled by 2 in 2 times and this 5 will cancel by 5 and this 6 will cancel by 3 in 2 times. So we have now 2 raised to the power minus 2 into 2 raised to the power 1 by 2 into 5 raised to the power minus 5 by 2 divided by 2 raised to the power minus 2 into 5 raised to the power minus 5 by 2. Now you can see here, this in numerator there is 2 raised to the power minus 2 and in denominator also 2 raised to the power minus 2. So this will be cancelled and 5 raised to the power minus 5 by 2 and 5 raised to the power minus 5 by 2 cancel with this. So we have 2 raised to the power 1 by 2 and any number raised to the power 2 is equal to their square root. Since x raised to the power 1 by 2 is equal to root x, so 2 raised to the power 1 by 2 will be equal to root 2 and this is equal to RHS. We have proved it. Now let us see some another problems. The question 2 is given that simplify fourth root of cubed root of x square and express the result in the exponential form of x. In the exponential form of x. So we have to simplify it. So let us simplify it. Fourth root of
cube root of x square. So it will be equal to 4th root of x raised to the power 2 upon 3, since nth root of a के पावर m इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m बाई n. ये होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे m n की जगह पे क्या है 3 है और m की जगह पे 2 है, तो ये हो जाएगा x रेज टू द पावर 2 बाई 3 m बाई n. तो m की जगह पे 2 है और n की जगह पे 3 है, तो m बाई n हो गया 2 बाई 3. फिर सेम फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, यही फार्मूला इसमें भी लगेगा, चूँकि ये भी 4th रूट ऑफ x के पावर 2 बाई 3 है, तो x का पावर 2 बाई 3 रेज टू द पावर 1 बाई 4, चूँकि nth रूट ऑफ a बराबर a के पावर 1 बाई n. तो यहाँ पे तुम्हारा 2 बाई 3 है, x के पावर 2 बाई 3 a हो गया, ये तुम्हारा a हो गया, और ये हो गया nth रूट ऑफ a, तो ये हो जाएगा a के पावर 1 बाई n, यानी a की जगह पे लिखेंगे x के पावर 2 बाई 3, होल पावर हो जाएगा 1 बाई n, दैट इज 4 है तो 1 बाई 4. अब पावर्स ऑफ पावर है तो इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 बाई 3 इंटू 1 बाई 4, 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, 2 से ऊपर बच गया x का पावर 1 बाई 3 इंटू 2, दैट इज इट विल बी इक्वल टू x का पावर 1 upon 6, and this is your final answer. It is in the exponential form of x raised to the power 1 by 6. This is your final answer. Now let us see question number 3rd. It is given that we have to simplify the product of cubed root of 2 into 4th root of 2 into 12th root of 32. तो इसका प्रोडक्ट निकालना है, तो इसका जो रेडिकल है वो सबका अलग अलग है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 12 है, तो सबका रेडिकल अगर सेम होगा तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. जैसे अगर मान लो यहाँ पे nth रूट ऑफ a है, यहाँ पे दिखाते हैं nth रूट ऑफ a है, और यहाँ पे भी nth रूट ऑफ b होगा, देन वी कैन मल्टीप्लाई, इट विल बी nth रूट ऑफ a b. अदरवाइज सपोज nth रूट ऑफ a इंटू mth रूट ऑफ b, देन वी कांट मल्टीप्लाई दिस टू इन स्क्वायर रूट, इसको हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये ऐसे ही रहेगा. जैसे 2 रूट 3 है और यहाँ पे 3 रूट 5 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. ये जो है नॉट इक्वल टू, यहाँ पे एक्सपोनेंट तब क्या दोगे, यहाँ पे संभव है n और m है, तो दोनों का n और m a b नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, ये गलत होगा, इसीलिए इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. दोनों का एक्सपोनेंट यहाँ रेडिकल जो है वो सेम होना चाहिए. तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, सबका जो रेडिकल है उसका एलसीएम फाइंड करेंगे, 3 का 4 का और 12 का. सॉल्यूशन में एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 12, तो ये हो जाएगा 12, निकालोगे एलसीएम तो आ जाएगा 12. नाउ अब बारी बारी से इसका रेडिकल जो है वो 12 के बराबर लाना है. तो क्यूब रूट ऑफ 2 है पहला, तो जो एलसीएम आया है
12 को इस रेडिकल से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है, ये हो जाएगा 4। तो ये जो है यहाँ पे 12 लिख देंगे और 3 से डिवाइड किए तो कितना बार में आया 4, तो उतना पावर हो जाएगा जो रूट के अंदर है उसका, यानी 2⁴ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इतना। उसी तरह से सेकेंड जो है 4√2 है, तो नाउ डिवाइड 12 by 4, the quotient will be 3 and it will be equal to 12√2⁵ and 12√32. तो 12 divided by 12 will be 1, तो ये हो जाएगा 1232⁵1। लिखो या नहीं लिखो उसका वैल्यू वही रहेगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 12 ये है 2⁵ हो जाएगा। नाउ यू कैन मल्टीप्लाई this 3, cube root of 2 into 4th root of 2 into 12th root of 32 is equal to हो जाएगा 12th root of, अब ये सबका रेडिकल जो है वो सेम हो गया, तो 12th रूट दे के 2⁴, 2⁵3 इंटू 2⁵5। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 12th और 2⁵ हो जाएगा 4 + 3 + 5, ये हो जाएगा 12th 2⁵12। अब जानते हैं कि चूंकि एक nth रूट ऑफ 1⁴m बराबर क्या होता है 1⁴m/n ये होता है, तो इसका हो जाएगा 2⁵12 होल पावर 1/12 या 12/12 कर सकते हैं, इसको काट देते हैं, ये 12/12 हो गया, क्योंकि nth रूट ऑफ 1⁴m बराबर हो जाता है 1⁴m/n। तो m के जगह पे क्या है 12 है और n के जगह पे भी 12 है, तो m/n यानी 12/12 हो गया। तो 12 and 12 cancel 2⁵1, that is equal to 2, and this is your final answer. So in this way you can multiply this type of, you can find the product of this type of problems. Now let us see question number 4. So your question is, you have to simplify 15⁻⁴ upon 3⁻⁴ and whole power -2. Bases are different and powers are different. बेसेज भी अलग अलग है और पावर्स भी अलग अलग है, तो इसको जो है वेरीफाई, ये सिंप्लीफाई करना है। तो 15 जो है फैक्टर है, उसका प्राइम फैक्टर किया जा सकता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 5 अपॉन होल पावर 1/4 and 3⁻⁴ and then whole power is -2. अब 3 का पावर 1/4 हो जाएगा और 5 का भी पावर 1/4 हो जाएगा और 3 का पावर 1/2 हो जाएगा और इसका होल पावर है -2।
तो इसके बाद जो है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, अब ये सेम पावर है, ये 1/4 छोटा है, 1/2 बड़ा है, तो इसको नीचे ला के घटा देंगे। 5 के पावर 1/4 अपॉन 3 के पावर 1/2 माइनस 1/4 रेज टू द पावर -2। तो ये हो जाएगा 5 का पावर 1/4 अपॉन 3 का पावर हो जाएगा 4 एंड 2 2 जा 4, 2 -1 होल पावर हो जाएगा -2। तब ये हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 1/4 अपॉन 3 रेज टू द पावर 1/4, होल पावर विल बी -2, यानी 5/3 रेज टू द पावर 1/4 and then whole raised to the power -2। तब यहाँ पे कौन सा लॉज अप्लाई हुआ है? लॉ जो है वो कौन सा अप्लाई हुआ है यहाँ पे? सिंस a के पावर m बाई b के पावर m इज इक्वल टू a बाई b का होल पावर m, ये लॉज अप्लाई हुआ है। अब यहाँ पे हो गया तुम्हारा 5/3, पावर्स ऑफ पावर है तो मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू -2, तो ये जो है कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 2 टाइम्स, तब हमको मिलेगा तुम्हारा 5/3 एंड रेज टू द पावर हो जाएगा -1 बचा ऊपर और नीचे 2। अब पावर चूंकि निगेटिव है तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो पावर हो जाएगा पॉजिटिव, यानी 3/5 रेज टू द पावर 1/2 ये हो जाएगा। तो इसको जो है चूंकि क्यों हुआ, x/y का पावर -m विल बी इक्वल टू y/x का पावर m प्लस हो जाएगा। तो अब जो है यहाँ पे अब इसको क्या करेंगे, 3 रेज टू द पावर अलग अलग लिख सकते हैं, बाई 5 रेज टू द पावर 1/2। तो इसको 3 के पावर 1/2 इज √3 एंड 5 रेज टू द पावर 1/2 इज √5। देन अब इसको रेशनलाइज कर देंगे, √5 बाई √5, इसको रेशनलाइज कर देंगे तब ये हो जाएगा तुम्हारा √15/5, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। इस तरह से इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। Now let us see question number 5. And your question number 5 is find the values of x for which fifth root of 5x plus 2 is equal to 2. So let us solve it. We have fifth root of 5x plus 2 is equal to 2. Now see, if nth रूट ऑफ कोई एक्सप्रेशन दिया हो x प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई भी दिया हो नंबर, नेचुरल नंबर c, देन वी हैव टू टेक द पावर दिस n ऑन बोथ साइड। पावर जो है n लेना, अगर nth रूट ऑफ x प्लस b बराबर c दिया हुआ है तो इस तरह के
इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ पावर क्या लेना है, n लेना है। पावर जो है वो n टेक टू बी टेकन ऑन बोथ साइड्स। जो भी यहाँ पे रहेगा रेडिकल, उस दोनों तरफ पावर लेना है। यहाँ पे क्या है, 5 है, तो टेकिंग पावर 5 ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ पावर, यहाँ पे 5 है तो 5 ले लेंगे। 3 रहता तो 3 लेते, 2 रहता, 2 तो रहता नहीं है, केवल स्क्वायर रूट रहता तो 2 ले लेते दोनों तरफ। यहाँ 5 है, 5 लेंगे, 6 रहेगा, 6 लेंगे दोनों तरफ पावर लेंगे। तो इसको जो है nth रूट ऑफ, देखो फिर से यहाँ पे लिख रहे हैं, nth रूट ऑफ a को क्या लिखते हो, a के पावर 1/n लिखते हो। तो यहाँ पे nth रूट ऑफ a है, a की जगह पे क्या है 5x + 2, n की जगह पे क्या है 5, तो इसको लिखोगे 5x + 2 का पावर हो जाएगा 1/n, यानी 1/5। और क्या करना है, हमें पावर लेना है 5, होल पावर 5 = 2 होल पावर 5। नाउ ये जो पावर है ये कट जाएगा, दोनों 5 से 5 जो है वो कट जाएगा। यहाँ पे ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया। अब इसके बाद जो है तुम्हारा ये हो जाएगा 5x + 2 केवल बच जाएगा, इसका पावर क्या बचेगा 1, तो 5x + 2 ही होगा, और इधर हो जाएगा 32। देन वी हैव 5x = 32 - 2. This implies that 5x = 30, and then you can cancel this 30 by this 5 in 6 times. So you will get x = 6, and this is your final value of x. Now let us see question number 6. It is given that 5x to the power -3 into 3 raised to the power 2x minus 8 = 225. Then find x. This is your question. If 5 raised to the power x minus 3 into 3 raised to the power 2x minus 8 = 225, then find x. So let us solve it. 5 raised to the power x minus 3 into 3 raised to the power 2x minus 8 = 225. It is given. Now a to the power m minus n can be written as a to the power m divided by a to the power n. So write it 5 raised to the power m minus n. तो इसको 5 के पावर x by 5 के पावर 3 लिख सकते हो, इसको 3 के पावर 2x by 3 के पावर 8 लिख सकते हो, बराबर 225। ये हो गया तुम्हारा। तब इसको जो है तुमको सॉल्व करना है, तो 5 raised to the power x इंटू, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 3 raised to the power 2 होल पावर x बाई 5
raised to the power 3 into 3 raised to the power 8, 225। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 raised to the power x, 3 square is 9 raised to the power x upon 5 raised to the power 3, और इसमें 3 का पावर क्या है 8 है, तो 3 के पावर 3 यहाँ लिख देते हैं और 3 का पावर 5 यहाँ गुणा कर देते हैं। यह हो जाएगा, फिर से गुणा करोगे तो 3 के पावर 3 प्लस 5 हो जाएगा 8। क्यों किया गया? ताकि इसका दोनों का जो पावर है वो सेम हो जाए। यहाँ ऊपर सेम हो गया पावर x और x, तो इसको 5 9 जा 45 रेज टू द पावर x लिख देंगे, और इसको 5 इंटू 3 इंटू, इसको फिर तोड़ देते हैं, 3 का पावर 3, 3 के पावर 3, 3 के पावर 3, तो 3 के पावर 3 और 3 6 हो गया, कितना था 8, तो बच गया 3 के पावर 2। इसमें से फिर 3 ला दिए इधर, तो ये हो गया तुम्हारा 2 बच गया बराबर 225। अब ये हो जाएगा तुम्हारा 45 रेज टू द पावर x अपॉन, ये देखो ये 5 इंटू 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 3 इंटू 9 विल बी इक्वल टू 225 हो जाएगा। यहाँ पे 5, ये 5 9 जा 45 रेज टू द पावर x हो गया, और ये तीनों का पावर 3 है, तो 5 इंटू 3 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर इज 9। अब इस 9 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, इधर बनाते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 45 रेज टू द पावर x अपॉन, ये 5 3 जा, यहाँ पे 5 3 जा 15, 3 जा 45 रेज टू द पावर 3, और इस 9 को इधर ला देंगे 225 इंटू 9, ये हो जाएगा 45 रेज टू द पावर x माइनस 3, और इसको ये 15 का स्क्वायर होता है, तो इसको 15 का स्क्वायर लिख दो, और इसको 3 का स्क्वायर लिख दो। 225 इज द स्क्वायर ऑफ 15 एंड 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3। अब दोनों का पावर सेम है, तो एक में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 45 रेज टू द पावर x माइनस 3, और ये हो गया 15 इंटू 3 रेज टू द पावर 2, तब ये हो जाएगा 45 रेज टू द पावर x माइनस 3, और इधर हो जाएगा 45 रेज टू द पावर 2। अब देख लो दोनों तरफ बेस सेम आ गया, तो पावर भी सेम होगा। यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ का साइन दोगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 2, एंड दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2 प्लस 3, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 5। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, इन नेक्स्ट class we will study some more problems on laws of exponents.